بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم اسٹوڈینٹس. آج کا ہمارا لیکچر جس ٹاپک کے اوپر ہے اس کا نام ہے ریپل ٹینک. ریپل ٹینک بیسیکلی ایک ایسا آپریٹس ہے، ایک ایسی ڈیوائس ہے جس کی مدد سے ہم واٹر ویوز کی کریکٹرسٹکس کو کافی آسانی کے ساتھ اسٹڈی کر سکتے ہیں، کیونکہ جب واٹر ویوز ہمارے سامنے لائیو پروڈیوس ہو رہی ہوتی ہیں یا موو کر رہی ہوتی ہیں تو ایسے میں ان کی کریکٹرسٹکس کو اسٹڈی کرنا، فار ایگزامپل ان کی سپیڈ کیا ہے، ان کی ویو لینتھ کتنی ہے، ان کا ایمپلیٹیوڈ کتنا ہے، اس کے علاوہ کچھ واٹر ویوز کی کچھ پراپرٹیز بھی ہیں جن کو ہم انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں ڈسکس کریں گے. ان پراپرٹیز کو ڈسکس کرنا لائیو ویوز کے ساتھ بہت مشکل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب اس مشکل کو آسان بنانے کے لیے ہمارے پاس ایک ڈیوائس ہے جس کا نام ہے ریپل ٹینک، جس پہ آج ہم بات کریں گے. تو اس ڈیوائس کی مدد سے ہم سب سے پہلے ویوز کو ایک آرگنائزڈ وے میں، ایک ریگولر وے میں اسٹریٹ ویوز کو جنریٹ کر سکتے ہیں. یہ اس کا سب سے پہلا فائدہ ہے، کیونکہ عموماً جب ہم ویوز کو کسی اور ذریعے سے جنریٹ کرتے ہیں، فار ایگزامپل آپ پانی کی سرفیس پہ کوئی پتھر پھینک دیں یا راڈ یا سٹک کی کوئی مدد لے کے آپ ویو جنریٹ کرنے کی کوشش کریں، تو ایسی صورت میں جو ویوز ہیں وہ ارریگولر شیپ میں پروڈیوس ہوں گی، یا ان کی جو شیپ ہے وہ کچھ اس طرح کی ہوگی کہ اس پہ مزید کوئی چیز اسٹڈی کرنا، کوئی چیز آبزرو کرنا ہمارے لیے بہت مشکل ہو جائے گا. تو اس لیے ریپل ٹینک کا سب سے پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ اس کی مدد سے اسٹریٹ ویوز کو ایک آرگنائزڈ مینر میں جنریٹ کر سکتے ہیں، اور پھر جب وہ اسٹریٹ ویو ہمارے سامنے جنریٹ ہوں گی تو ہم آسانی سے ان کے اوپر کوئی بھی ورک کرنا چاہیں، کوئی اسٹڈی کرنا چاہیں تو وہ ہم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ اسکرین شاٹ آپ کے سامنے آپ کی بک سے ہی لے کے یہاں پہ شو کیا جا رہا ہے. آپ اس کو ایزیلی پڑھ بھی سکتے ہیں، لیکن اس سے پہلے بہتر ہوگا کہ ہم اس کی ڈائیگرام کو سامنے رکھیں اور اس کو دیکھیں، اس کے پارٹس کو آبزرو کریں اور ان کے مقصد کو جان لیں کہ ہر پارٹ کا مقصد کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی، تو چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں. فرسٹ آف آل ہمارے پاس ریپل ٹینک کا جو سب سے میجر پارٹ ہے جس کو ہم سب سے پہلے یہاں پہ ڈسکس کریں گے وہ ہے جی ہمارے پاس یہ ایک گلاس ٹرے ہے. یہ آپ کو نظر آ رہی ہے ریکٹینگولر شیپ میں، یہ آپ کو ایک گلاس ٹرے نظر آ رہی ہے، شیشے کی کانچ کی بنی ہوئی اور ٹرانسپیرنٹ گلاس ہے. سب سے اہم بات یہ کہ یہ ٹرانسپیرنٹ گلاس ہے جس میں سے لائٹ آسانی سے گزر سکتی ہے، یا جس کے آپ کو اکراس نظر آ سکتا ہے، آر پار آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں ٹرانسپیرنٹ گلاس یا شفاف شیشہ. اچھا، یہ جو ہمارے پاس ریکٹینگولر گلاس ٹرے ہے، ٹھیک ہے، اس میں ہم واٹر فل کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، جس واٹر میں ہم ویو پروڈیوس کرنے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ واٹر ہم اس کے اندر فل کر لیں گے. ٹھیک ہے، تھوڑا سا اوپر سے حصہ اس کا چھوڑ دیا جائے گا، بالکل کمپلیٹلی اس کو فل نہیں کیا جائے گا، تھوڑا سا اس کا حصہ رہنے دیا جائے گا. ٹھیک ہے جی، تو یہ سب سے پہلا حصہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ جو گلاس ٹرے ہے یہ زمین سے کچھ اونچائی پہ رکھی جاتی ہے. ٹھیک ہے، تقریباً 1/2 میٹر، جیسے آپ کے اس ٹاپک میں لکھا ہوا ہے 1/2 میٹر ابو دا سرفیس آف اے ٹیبل. ٹھیک ہے، تو یہ تقریباً 1/2 میٹر جو ہے یہ آپ ایک ٹیبل کی سرفیس کے اوپر اس کو رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، تاکہ یہ زمین سے تھوڑا سا اونچا رہے، بالکل زمین کے ساتھ ٹچ نہ کر رہا ہو. تو اب اگلا حصہ ہے جو اس کا ہوتا ہے وہ ہمارے پاس یہ ایک ووڈن بار ہے. یہ آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ ایک ووڈن بار ہے جس کو ہم نے سٹرنگز کی مدد سے ایسے سسپینڈ کیا ہوا ہے، اس کو لٹکایا ہوا ہے، ہینگ کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ کو 2 ہکس نظر آ رہی ہوں گی، ایک یہ ہک ہے،
इसी तरह एक ये हुक है, ठीक है जी। तो ये इसके साथ हमने इसको सस्पेंड किया हुआ है, ठीक है। हुक्स को थोड़ा एडजस्ट करके हम ये जो वुडन बार है जिसको हम पैडल बोलते हैं, बेसिकली इसका नाम क्या होता है, पैडल होता है, ठीक है। तो हम इसकी पोजीशन को एडजस्ट कर सकते हैं, अगर हम चाहें तो इसको ऊपर भी थोड़ा कर सकते हैं और अगर चाहें तो नीचे भी कर सकते हैं। अमूमन इसकी जो पोजीशन है वो अगर आप एडजस्ट करें तो वो कुछ यूं होती है कि इसका जो बॉटम है, इसका जो नीचे वाला हिस्सा है, ये जो इसके नीचे वाला हिस्सा है, ये वाटर सरफेस के साथ टच होना चाहिए, ठीक है। बस उसकी पोजीशन इतनी रखें, इसकी हाइट इतनी रखें कि इसका जो बॉटम है ये वाटर सरफेस के साथ वो टच हो, ठीक है। सच दैट इट्स लोअर सरफेस जस्ट टचेस द सरफेस ऑफ वाटर, ठीक है। साथ साथ मैं आपको बुक की वर्डिंग भी बता रहा हूँ ताकि आपको उसको समझने में भी कोई मुश्किल पेश ना आए, ठीक है। अच्छा जी, अब हम इसको एडजस्ट करने के बाद इसको हम एक मोटर के साथ अटैच करते हैं, ठीक है। ये जो पैडल है या वुडन बार है इसको हम एक मोटर के साथ अटैच करते हैं और ये मोटर जो है ये 2 वायर्स के जरिए से हम पावर सप्लाई के साथ कनेक्ट कर देते हैं, जहां से इसको कंट्रोल किया जाता है, ऑन या ऑफ या तेज आहिस्ता, जितनी भी आप इसको जैसे भी चलाना चाहें आप इसको चलाते हैं। अच्छा, अब बेटा होता ये है कि जब आप इस मोटर को ऑन करते हैं तो जब ये मोटर रोटेट करती है, घूमती है, तो इसके साथ ये जो पैडल आपने अटैच किया हुआ है ये वाइब्रेट करना शुरू हो जाता है, ठीक है। ये ऊपर नीचे, कभी ये वाला हिस्सा इसका ऊपर होता है, कभी ये वाला हिस्सा ऊपर होता है, ठीक है। तो ये इस हॉरिजॉन्टल लेवल पे ये वाइब्रेट करना शुरू हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन ये होती है कि वाइब्रेशन किस नोयत की होती है इसकी। एक तो वाइब्रेशन ये है कि ये पैडल ऊपर नीचे होना शुरू हो जाए, तो ऐसा हरगिज नहीं है, बल्कि ये पैडल बिल्कुल जैसे आप इस पैडल को अपने सामने एक जगह पे रखें और इसको थोड़ा सा इस तरीके से वेव करें कि यहाँ से कभी ऊपर करें, कभी यहाँ से ऊपर करें, ठीक है। तो ये इस मानों में ऐसे ये वाइब्रेट करेगा जब आप इस मोटर को ऑन करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब जब ये वाइब्रेटर ऑन होता है तो चूंकि इसका बॉटम, इसका लोअर एंड वाटर सरफेस के साथ अटैच है, और दूसरा ये कि ये जो पैडल है ये बिल्कुल स्ट्रेट है, बिल्कुल सीधा है। अब होगा ये कि जैसे ये वाइब्रेशन स्टार्ट करेगा तो वाटर सरफेस पे स्ट्रेट वेव्स जनरेट होना शुरू हो जाएंगी, जैसे कि आपको ये नजर आ रहा है, ये आपको लाइंस कुछ नजर आ रही होंगी, दरअसल ये वेव्स नजर आ रही हैं हमें जो कि बिल्कुल स्ट्रेट वेव्स, ठीक है जी। तो हमारा मकसद भी यही था कि हम आसानी से स्ट्रेट वेव्स को जनरेट कर सकें और उन पे कोई भी वर्क करना हो, कोई स्टडी करनी हो तो वो हम इजीली कर सकें। आगे चलने से पहले यहाँ पे एक अहम बात आपको बताता चलूं कि इस वाइब्रेटर या इस पैडल की जो वाइब्रेशन है इसकी स्पीड का दारोमदार इस मोटर की स्पीड पे होता है। अगर आप इस मोटर की स्पीड बढ़ा देंगे तो ये वाइब्रेटर या ये पैडल तेजी से वाइब्रेट करेगा, यानी इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो जाएगी। जब इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो जाएगी तो जो वेव्स जनरेट होंगी यकीनन उनकी फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि हम जस्ट एक मोटर की स्पीड को कंट्रोल करके हम वेव्स की फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल कर सकते हैं, यानी जैसी हम वेव चाहें वैसी हम जितनी फ्रीक्वेंसी की चाहें हम उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि ये ऑपरेटर्स हमारे लिए इतना अहम है कि हम इसकी मदद से अपनी मर्जी से स्ट्रेट वेव्स को जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। एनीवेज, अब हम आते हैं एक और इसके हिस्से की तरफ, जो कि आपको ऊपर एक ये इल्यूमिनेशन लिखा हुआ है। ये इल्यूमिनेशन मीन्स के यहाँ पे एक रोशनी के लिए एक बल्ब लगाया गया है, ठीक है। ये बल्ब इसके ऊपर लगाया जाता है और एक इसका सबसे लोअर पार्ट आपको नजर आ रहा है, ये अगर आप देखें तो यहाँ पे एक पेपर आपको दिखाई देगा, ये पेपर है, ठीक है। बेसिकली इसको हम स्क्रीन बोलते हैं, ठीक है। स्क्रीन बेटा उसका कंसेप्ट थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि स्क्रीन हर उस जगह को, हर उस सरफेस को क्या कहा जा सकता है कि जिस पे आप किसी चीज का अक्स, किसी चीज का इमेज देख सके, हम उस सरफेस को स्क्रीन कह सकते हैं। जैसे आप अक्सर देखते हैं कि प्रोजेक्टर के जरिए से हम एक दीवार के ऊपर वीडियो देखना शुरू कर देते हैं, एक दीवार के ऊपर हम
प्रोजेक्टर को जब एक्सपोज करते हैं तो हमें एक दीवार पे इमेज नज़र आता है, तो जब हम उस दीवार पे कोई वीडियो या कोई इमेज देख रहे होते हैं तो उस टाइम वो दीवार एज अ स्क्रीन यूज़ हो रही होती है। उस वक्त आप उसको स्क्रीन कह सकते हैं क्योंकि वो हमें एक इमेज दिखा रही है, हम उसके ऊपर इमेज देख रहे हैं। तो मैं यहाँ पे आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो आपके पास एक पेपर नज़र आ रहा है, बज़ाहिर तो ये कागज़ है, लेकिन यहाँ पे इसको स्क्रीन कहा जा रहा है, इसलिए क्योंकि इसके ऊपर आप इन वेव्स का इमेज देखने वाले हैं। अब इन वेव्स का इमेज आपको कैसे नज़र आएगा? इसके लिए आप देखें, ये जो बल्ब है ये बड़ा अहम रोल प्ले करता है। जब आप बल्ब ऑन करते हैं तो इस बल्ब की जो लाइट है ये इस ग्लास ट्रे में से गुजरती है। मैंने शुरू में कहा था कि ये ट्रांसपेरेंट है, तो ट्रांसपेरेंट का मकसद अब आपको समझ आ गया होगा, यानी इसमें से लाइट गुजर सकती है। वाटर तो वैसे ही ट्रांसपेरेंट होता है, तो ये जो ग्लास ट्रे जिसमें पड़ा हुआ है वो भी ट्रांसपेरेंट है। तो यहाँ से जब लाइट आती है तो वो लाइट इसमें से पास होती है, ठीक है। लाइट इसमें से पास होने के बाद डायरेक्ट जो है वो नीचे पेपर तक पहुँचती है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ से लाइट पास होने के बाद डायरेक्ट यहाँ से गुजर के पेपर तक पहुँच जाती है, ठीक है बेटा। अब होता ये है कि जब लाइट इस वाटर वेव्स या जिस सरफेस पे वेव्स जनरेट हुई हुई हैं, जब वहाँ से लाइट गुजर के फिर शीशे में से गुजर के नीचे पेपर स्क्रीन तक आती है, तो इन वेव्स का एक इमेज बनता है जो कि आपको यहाँ पे दिखाई देता है, यानी इस पेपर स्क्रीन पे आपको यहाँ पे दिखाई देता है, ठीक है। अब आपको फ़ायदा ये होगा कि जब आप वेव्स का इमेज इस पेपर पे देखेंगे तो अब आप इजीली यहाँ पे उसकी वेव लेंथ को मेजर करना चाहें, आप यहाँ पे वाटर वेव्स की स्पीड को देखना चाहें, या आप उनकी फ्रीक्वेंसी को ऑब्जर्व करना चाहें, आप उनकी लेंथ को, किसी भी चीज़ को अगर आप ऑब्जर्व करना चाहें तो आप बड़े आराम से, बड़ी आसानी से, क्योंकि अब ये एक पेपर शीट के ऊपर सब चीज़ आपको मिल गई है, तो अब आप इजीली उनको ड्रा भी, इवन आप इनको इन लाइंस के ऊपर अगर आप खुद लाइंस पेंसिल से बना लें तो आप उनको ड्रा भी कर सकते हैं, और जब वो ड्रा हो जाएंगी तो फिर आपके लिए काम मज़ीद आसान हो जाएगा। अब अगर आप इस रिपल टैंक के ऑपरेटर्स में से इस पेपर को बाहर निकाल के साइड पे भी आप उसको रख के उसमें कोई स्टडी करना चाहें तो आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मकसद था इस स्क्रीन का, ठीक है। तो ये था जी आज का हमारा जो टॉपिक जिसमें हमने रिपल टैंक के हवाले से डिटेल में बात की। तो ये एक ऑपरेटस है जिसकी मदद से आप अपनी डिज़ायर्ड टाइप ऑफ वेव्स को जनरेट कर सकते हैं। गो के रिपल टैंक में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि काम करती हैं। फॉर एग्जांपल सर्कुलर वेव्स भी जनरेट की जा सकती हैं, और इसमें एक स्ट्रोबोस्कोप भी यूज़ की जाती है जिसके ज़रिए से आप इन वेव्स की मूवमेंट को थोड़ी देर के लिए स्टैग्नेट कर लेते हैं या उनको आप रोक लेते हैं। लेकिन वो यहाँ पे चूँकि उसका ज़्यादा डिटेल में आपकी बुक में उसका हवाला नहीं दिया गया, तो चलें हम उसको यहाँ पे स्किप कर देते हैं, ठीक है। तो इतना ही काफ़ी है कि आप चेक कर लें। अब यहाँ पे लास्ट में एक बात आपको मैं मज़ीद बताता चलूँ कि जब आप पेपर पे इन वेव्स का इमेज देखते हैं तो आपको कुछ यहाँ पे ब्राइट और कुछ डार्क लाइंस नज़र आती हैं जिनको हम ब्राइट एंड डार्क फ्रिंज का नाम देते हैं, ठीक है। ये जो ब्राइट एंड डार्क लाइंस का यहाँ पे जिक्र हो रहा है, अगर आप यहाँ पे इस इमेज में भी देखें तो आपको यही चीज़ तकरीबन थोड़ी और क्लियर करके दिखाई गई है कि इसमें ब्राइट और डार्क आपको लाइनें नज़र आ रही हैं, ठीक है। तो ये भी आप यहाँ पे देख लें, इधर डार्क जो है वो ब्लू कलर से दिखाया गया है और बाकी जो ब्राइट है वो दरमियान में वाइट कलर से आपको लाइनें नज़र आ रही हैं। तो इनमें याद रखें कि जो ब्राइट लाइंस होंगी वो क्रस्ट को रिप्रेजेंट करेंगी, ठीक है। जो ब्राइट लाइंस हैं वो क्रस्ट को रिप्रेजेंट करती हैं, और जो डार्क हैं वो ट्रफ को ज़ाहिर करती हैं, क्योंकि आपको पता है ट्रांसवर्स वेव में क्रस्ट और ट्रफ उसके दो अहम पार्ट्स होते हैं। तो ब्राइट लाइनें क्रस्ट को और डार्क लाइनें ट्रफ को रिप्रेजेंट करती हैं। तो ये भी एक अहम बात है जो यहाँ पे याद रखने वाली है कि रिपल टैंक का जो इमेज ऑब्टेन होता है उसमें आपको क्रस्ट और ट्रफ किस तरह से दिखाई देते हैं, तो ये आप बताएं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ें तमाम मिल जाएंगी। ये था आज आपका टॉपिक बेटा, आपका स्क्रीनशॉट बुक का भी आपके सामने है, ठीक है। यहाँ से आप इसकी वर्डिंग को भी चेक कर सकते हैं।
اس کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو ہم یہاں پہ اینڈ کرتے ہیں. ویڈیو پسند آئے تو اپنے فرینڈس کے ساتھ، اپنے کلاس میٹس کے ساتھ اس کو شیئر ضرور کیجیے گا، لائک کیجیے گا. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.